next topic is equivalent weight of the substance. Equivalent weight is the amount in parts by weight which combines with 1.008 parts by weight of hydrogen or 1 or 35.5 parts by weight of chlorine or 8 parts by weight of oxygen. So it is nothing but that much parts by weight of the substance which combine with 1.008 grams of hydrogen या फिर 35.5 parts by weight of chlorine और 8 parts by weight of oxygen. और equivalent weights जो निकाले जाते हैं in case of acids, equivalent weight is equal to the molecular weight divided by basicity of the acid. Basicity होती है number of replaceable H positive ions in an acid. For example, in case of H2SO4, basicity is 2 because there are 2 replaceable H positive ions in case of H2SO4. So in case of H2SO4, equivalent weight will be equal to its molecular weight 98 divided by 2. So it will be 49. And in case of bases, equivalent weight is equal to the molecular weight divided by acidity in this case. And acidity is number of replaceable hydroxyl ions present in a base. For example, if we have to calculate the equivalent weight of calcium hydroxide, that will be equal to molecular weight divided by 2 because number of replaceable OH negative ions in case of calcium hydroxide are 2. And in case of salts, equivalent weight is equal to molecular weight divided by total valency or total positive valency. For example, in case of Na2CO3, the equivalent weight in this case will be equal to its molecular weight divided by 2 because total positive valency or total negative valency in this case will be 2. We have to take into consideration only the magnitude of the valency, either positive valency or the negative valency. So next method for calculating the equivalent weights is hydrogen displacement method. Hydrogen displacement method which is based on the definition जो मैंने सबसे starting में बोली थी equivalent weight की, कि equivalent weight is nothing but equivalent weight of the substance is number of parts by weight of that substance that reacts or displaces 1.008 parts by weight of hydrogen or 35.5 parts of chlorine or 8 grams or 8 parts by weight of oxygen. So hydrogen displacement method में equivalent weight will be equal to weight of element divided by weight of hydrogen displaced into 1.008. This formula you have to remember, that equivalent weight will be equal to weight of the element divided by weight of the hydrogen displaced into 1.008. अब जब ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हाइड्राइड्स बन रहे हैं और मेटल गिवन है आपको या एलिमेंट गिवन है, तो देन यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. नेक्स्ट इज
oxide formation method, जब भी कहीं पे ऑक्साइड्स बन रहे हैं उस केस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है अपने एलिमेंट का, यू विल यूज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, एंड इन दिस केस इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट divided by weight of oxide minus weight of element into 8. Weight of element divided by weight of oxide minus weight of element will be weight of oxygen. तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है वहां पे ऑक्सीजन का वेट अगर गिवन हो न्यूमेरिकल में तो आप वो ले सकते हो डायरेक्टली. अगर ऑक्साइड का वेट गिवन है और एलिमेंट का वेट गिवन है तो आप माइनस कराओगे वेट ऑफ ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ एलिमेंट into 8. This will be equivalent weight of the element by the oxide formation method. Next method is chloride formation method. Chloride formation method. In this case, equivalent weight of the element is equal to weight of element divided by weight of chloride minus weight of element into 35.5. तो ये भी वही सेम है जैसे वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्साइड था, उस केस में माइनस वेट ऑफ एलिमेंट था, तो यहां पे वेट ऑफ क्लोराइड माइनस वेट ऑफ एलिमेंट इनटू 35.5. दिस विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड. तो जहां भी क्लोराइड्स बन रहे हैं और वेट ऑफ एलिमेंट गिवन है या वेट ऑफ क्लोरीन गिवन है, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला इक्विवेलेंट weight of element divided by weight of chloride minus weight of element into 35.5. Next method is metal displacement method. इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट एक्वस. दिस विल गिव यू ZnSO4 प्लस कॉपर. और आपको गिवन है कि वेट ऑफ जिंक आपको पता है, वेट ऑफ कॉपर डिस्प्लेस्ड आपको पता है, तो देन यू कैन यूज दिस रिलेशन कि वेट ऑफ जिंक रिएक्टेड अपॉन weight of copper displaced will be equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of copper. जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में, आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म ZnSO4 प्लस कॉपर. वेट ऑफ जिंक दैट हैज रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड will be equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of copper. This is metal displacement method to find out the equivalent weight. इसमें से एक का given होगा आपको, दूसरे का unknown होगा, that you can calculate by using this relation, और weights भी given होंगे आपको numericals में. Next method is double decomposition method. डबल डीकम्पोजिशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें AB इज रिएक्टिंग विद CD और रिएक्शन होके बन रहा है AD प्लस BC. तो इस डबल डीकम्पोजिशन मेथड से यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट. और कैसे? वेट ऑफ AB divided by weight of AD formed will be equal to
equivalent weight of A plus equivalent weight of B divided by equivalent weight of A plus equivalent weight of D. तो इसमें से इक्विवेलेंट वेट्स जो हैं कुछ ना कुछ गिवन होंगे आपको, एक अननोन होगा, दैट इक्विवेलेंट वेट कैन बी कैलकुलेटेड. दिस इज डबल डीकंपोजिशन मेथड. फॉर एग्जांपल AB इज रिएक्टिंग विद CD टू फॉर्म AD प्लस BC. डबल डीकंपोजिशन हो रही है, तो इसमें वेट ऑफ AB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ AD फॉर्म्ड, ये रेशियो विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ AD. और इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ AD को ले सकते हैं आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ D. So this is double decomposition method to calculate the equivalent weights. Next is electrolytic method. Electrolytic method to calculate the equivalent weight. और इसमें सेकेंड लॉ जो है फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस वाला वो यूज होगा. और सेकेंड लॉ कहता है कि जैसे दो सॉल्यूशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, आई एम टेकिंग टू सॉल्यूशंस एज AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. और अगर इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से पास करवाई जाए तो सेकेंड लॉ जो है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का वो कहता है कि वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड, जो फर्स्ट सेल में सिल्वर डिपॉजिट होगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनका रेशियो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. अगर आपको वेट्स पता है, एक का इक्विवेलेंट वेट पता है, यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड मेटल इन दिस केस. अगर कॉपर का अननोन है और इसका गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का यूज हुआ इलेक्ट्रोलिसिस वाला, कि अगर दो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उनमें से अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो वेट ऑफ द फर्स्ट मेटल जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिपॉजिट होगा, जैसे इस केस में सिल्वर डिपॉजिट होगा, उसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कॉपर सेकंड में जो डिपॉजिट हो रहा है, इनका जो रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स. सो दीज आर सम मेथड्स टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट्स. एक तो ये रिलेशन याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. और अगर इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक वेट, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एटॉमिक वेट. सेकेंड मेथड इज ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ. Dulong and Petit's law, and according to this law, atomic weight of the element into specific heat is approximately equal to 6.4. अगर न्यूमेरिकल्स में you are given the specific heat, तो आप atomic weight कैलकुलेट कर सकते हो. मान लीजिए specific heat की वैल्यू x दी है, तो atomic weight of that particular element will be equal to 6.4 divided by specific heat. This is Dulong and Petit's law to calculate the atomic weight. Next method is volatile chloride method. अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो वॉलेटाइल क्लोराइड बना रहा है और उस एलिमेंट को, मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर दें,
और मान लीजिए उसकी वैलेंसी है X, तो जो क्लोराइड बनाएगा वो दैट विल बी MClX। और क्योंकि वॉलेटाइल क्लोराइड बन रहा है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो लेट दिस क्लोराइड बी वॉलेटाइल। तो इस केस में जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इस क्लोराइड का दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M, एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस X टाइम्स 35.5। एंड एटॉमिक वेट को आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में, कैसे? इक्विवेलेंट वेट इंटू this is the valency X, equivalent weight into valency X plus X into 35.5। तो ये एटॉमिक वेट जो पीछे रिलेशन बताया था वहीं से निकाल के लिया, यहां पे इक्विवेलेंट वेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट जो है दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट इज E एंड X इज द वैलेंसी ऑफ मेटल M, सो EX विल बी एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल M प्लस X इंटू 35.5। और मॉलिक्यूलर वेट को क्योंकि वॉलेटाइल है यू कैन राइट इट एज ट्वाइस वेपर डेंसिटी, सो दिस विल बी ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू X कॉमन ले लें E प्लस 35.5। दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, अगर वेपर डेंसिटी वॉलेटाइल क्लोराइड की गिवन है, वैलेंसी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, या फिर अगर इक्विवेलेंट वेट गिवन है यू कैन कैलकुलेट द वैलेंसी। दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज empirical formula and the molecular formula of the compound. Empirical formula and molecular formula of the compound. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो हमें बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। दैट मींस एक मॉलिक्यूल में इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। वेयर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स present in the molecule of that particular substance. जैसे बेंजीन का empirical formula will be C1H1 because this is the simplest whole number ratio of carbon and hydrogen, 6:6. Simplest whole number ratio will be 1:1. So empirical formula is the simplest whole number ratio of the atoms present in one molecule. और एक इसके लिए method है to determine the empirical formula. अगर numericals आते हैं then you will be given the element, फॉर एग्जाम्पल मैं लूं कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स आर देयर। नेक्स्ट यू विल बी गिवन द परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, लेट द परसेंटेजेस बी A, B, C। देन इन द नेक्स्ट कॉलम यू विल हैव टू राइट द एटॉमिक मास, this is 12, this is 1 and this is 16। next column में you will have to take the molar ratio, और molar ratio आता है percentage divided by the atomic mass। next column में you will have to take the simplest ratio, और सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेना है, जो इन तीनों में सबसे छोटा होगा उससे सारों को डिवाइड कर देना है। जो सबसे इनमें छोटा होगा उससे सारों को आपने डिवाइड कर देना है, दैट विल गिव यू द सिंपलेस्ट रेशियो। और अल्टीमेटली यू विल हैव टू टेक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा, मान लीजिए आ रहा है 1 2 3, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का दैट विल बी इक्वल टू C
1, H, 2 and O, 3. This will be the empirical formula of this compound. So element, after that percentage, after that atomic mass, percentage से atomic mass को divide करना, that will give you the molar ratio. After that it will be simplest ratio, जिनमें सबसे छोटा उससे सारों को divide कर देना है, that will give you the simplest ratio. और उसके बाद आपने simplest ratio को simplest whole number ratio में convert करना है, और simplest whole number ratio के corresponding जो formula बनेगा, that will be the empirical formula of the compound. Next is molecular formula. अगर निकालना हो from the empirical formula तो कैसे निकालेंगे? You will have to calculate N in this case, and N is molecular formula mass. इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहे वेपर डेंसिटी की फॉर्म में दी होगी. अगर मान लीजिए वेपर डेंसिटी दी होगी तो आपने ट्वाइस वेपर डेंसिटी करना है, दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे यहां पे निकला है इसका मास आपने नीचे लिखना है, दैट विल गिव यू N. और अगर N पता चल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. This is the method to determine the empirical formula and the molecular formula. इसका हम प्रैक्टिस करेंगे, एक न्यूमेरिकल में देने जा रहा हूं आपको. You will have to write it down. So open your registers and you can write down the numerical based on empirical formula. Question is, a compound on analysis was found to contain, a compound on analysis was found to contain carbon equal to 34.6% and hydrogen equal to 3.85% and oxygen equal to 61.55%, and you have to calculate its empirical formula. So you will draw that table. यहां पे एलिमेंट सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड सेकेंड में परसेंटेजेस 34.6%, हाइड्रोजन इज 3.85% and oxygen is 61.55%. Second column, next column में it will be atomic masses. Carbon has the atomic mass 12, hydrogen 1 and oxygen is 16. In the next column you have to take the molar ratio or the atomic ratio, and that will be 34.6 divided by 12, and this is coming out to be 2.88. Next will be 3.85 divided by 1, that is 3.85 only. Next is 61.55 divided by 16, and that is also 3.85. इससे नेक्स्ट में आपने इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है, और सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा कि जब जो लोएस्ट है इसमें सारों में उससे सारों को डिवाइड करना है. 2.88 सबसे कम है इसमें, तो 2.88 से सारों को डिवाइड करना है. इसमें इट विल बी 1. सेकेंड में 3.85 डिवाइडेड बाय 2.88 एंड दैट इज 4/3, एंड 3.85 डिवाइडेड बाय 2.88 दैट इज ऑल्सो 4/3. और अल्टीमेटली simplest whole number ratio, and that will be, इसको आपने simplest whole number ratio बनाना है इसका, तो 4/3 को आपने whole number में अगर convert करना है तो इसको 3 से multiply करना पड़ेगा, इसको भी और इसको अगर दोनों को कर रहे हो तो इसको भी multiply करना पड़ेगा, तो it will be 3, 4, 4. So the empirical formula of this particular compound is C3H4 and O4. This is the empirical formula of this particular compound. And next
topic after empirical formula and the molecular formula is how to determine the percentage composition of each element from the molecular formula. Percentage composition तो percentage composition percent of the element present in any compound is equal to number of parts by weight of the element present in that compound divided by molecular weight of that compound into 100. किसी भी कंपाउंड में परसेंट ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वो निकलेगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू 100. एक एग्जांपल लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा ये. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट in case of MgSO4, you can write it down. Calculate the percentage composition of various elements in MgSO4. So question is calculate the percentage composition of various elements in MgSO4. सबसे पहले MgSO4 के अगर सारा एलिमेंट्स के आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4 विल बी इक्वल टू 24 मैग्नीशियम प्लस सल्फर इज 32 प्लस 16 फोर्स आर 64 एंड दिस इज इक्वल टू 120. जैसे आपने परसेंटेज निकालनी है परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू जितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है MgSO4 में Mg इज 24 डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है नीचे इंटू डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20%. सिमिलरली बाकियों का निकाला जा सकता है. परसेंट ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी जितना सल्फर प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में 32 डिवाइडेड बाय 120 into 100. This will give the percentage of sulfur and this is coming out to be 26.67%. And last is oxygen, and oxygen present is 64. Percentage of oxygen 64 divided by 120 into 100 and this is equal to 53.33%. So this is the method to determine the percentage composition of each element in the particular compound. Mole concept, in case of solutions, तो सबसे पहले हमें देखना है कि सॉल्यूशंस होती क्या है, व्हाट आर सॉल्यूशंस, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स हैं सॉल्यूशंस के केस में. सबसे पहले सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components whose concentration can be varied within certain limits.
यहां पे हम स्टडी करेंगे ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन बाय वेट, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन मोर प्रोपोर्शन बाय वेट। मान लीजिए सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया जाए पानी में, तो सॉल्ट विल बी द सॉल्यूट एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट। देयर आर सर्टेन मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, and first important method is molarity. Molarity is number of moles of solute per liters of solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन, और सोल्यूट को मैं यहां B से एक्सप्रेस करूंगा और सॉल्वेंट को A से। सोल्यूट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय B एंड सॉल्वेंट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे? किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने होते हैं, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी, अगर वेट इज WB अपॉन molecular weight is MB, so these will be number of moles of the solute। और नीचे चाहिए हमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, so this will be V if is given in milliliters, volume of the solution is in milliliters, then you have to convert it into liters by dividing it by 1000. So this is the molarity of the solution. Number of moles of solute are WB upon MB. WB is weight of the substance, weight of the solute in grams, and MB is the molecular mass of the solute. नीचे है volume of the solution in milliliters, but in this definition volume of the solution should be in liters. So V milliliter divided by 1000, this will give the molarity of the solution. Next method to express the concentration is molality. Molality. It is written, expressed by small m, and this is equal to number of moles of solute divided by kg of the solvent. Number of moles of the solute per kg of the solvent is the molality. और number of moles कैसे निकलेंगे? वही method, weight of the solute divided by molecular mass of the solute. These are the number of moles of the solute per kg of the solvent. If solvent is in grams, WA is the weight of the solvent in grams, तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे kgs में कैसे? Dividing it by 1000. So this expression gives the molality of the solution. So molality is number of moles of the solute per kg of the solvent, and molality will be WB by MB. WB is weight of the solute in grams, MB is the molecular mass of the solute, WA is the weight of the solvent in grams, dividing it by 1000 will give the weight of the solvent in kgs. Next method to express the concentration is normality. And normality is equal to number of gram equivalents of the solute, number of gram equivalents of solute
per liters of the solution. और किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. जैसे मोल्स निकलते थे, मोलैरिटी में मोल्स निकलते थे, वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास. ग्राम इक्विवेलेंट्स में बस ये डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास की जगह आपने इक्विवेलेंट मास लेना है, वो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे सब्सटेंस के. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट आर इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट divided by equivalent mass of the solute WB upon EB. That will give you the number of gram equivalents of solute. और solution जो है अगर मिलीलीटर्स में है तो इसको आप कन्वर्ट करोगे लीटर्स में. So this is normality, another method to express the concentration of the solution. Number of gram equivalents of the solute per liters of the solution. Number of gram equivalents are equal to weight of the solute divided by equivalent weight of the solute. नीचे है liters of the solution. अगर वॉल्यूम solution की दी आपको मिलीलीटर्स में तो V milliliters upon 1000, that will give you liters of the solution. Next important method to express the concentration of a solution is mole fraction. Mole fraction. मान लीजिए सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मैं कह रहा था सोल्यूट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बी से, एंड एक्स बी विल बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर रखने हैं आपने न्यूमरेटर में, एन बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी. दिस विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. And mole fraction of solvent XA will be equal to Na divided by Na plus Nb. And in case of this binary solution, XA plus XB will be equal to 1. और अगर एक की मोल फ्रैक्शन पता चल जाए आपको तो दूसरी you can calculate just by subtracting it from 1. XA plus XB is equal to 1. Next method is weight fraction. XB is the weight fraction of the solute, और जिसकी वेट फ्रैक्शन निकालनी है उसका वेट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वेट WA plus WB. This is the weight fraction of solute. Next is weight fraction of solvent. This will be equal to WA divided by WA plus WB. Now there are certain relations. Normality और molarity के बीच में एक बहुत important relation है, which you have to remember, that normality is equal to molarity into valency. For example, in case of acids, for example H2SO4 में normality of H2SO4 will be equal to molarity into basicity of H2SO4. बेसिसिटी अभी किया था हमने, बेसिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस. तो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है H2SO4 की, सपोज इट इज 0.1 मोलर H2SO4, और आपको ये पता है कि इसकी बेसिसिटी इज 2, तो 0.1 into 2 that will be normality equal to 0.2 normal. Similarly, in case of bases,
Normality is equal to molarity into acidity. For example, in case of calcium hydroxide, normality will be equal to molarity into 2, because in this case acidity, calcium hydroxide ki acidity is 2, number of replaceable OH negative ions are 2. So normality is equal to molarity into valency, this you have to remember. Next, there is normality equation and molarity equation. Suppose a solution is there जिसकी starting में normality is given and normality, let the normality is N1 और उसके corresponding जो volume है उसकी let that be V1. अब मान लीजिए solution को dilute किया जाता है, water add कर दें या dilution की जाए इसकी और volume बन जाती है इसकी V2. तो V2 के corresponding जो normality N2 आएगी, that can be calculated with the help of this normality equation. N1 V1 is equal to N2 V2. This is the normality equation. Similarly, we have molarity equation also. And that is equal to M1 V1 is equal to M2 V2. यहां पे वही है कि स्टार्टिंग वाले स्टेज में M1 इज द मोलैरिटी, V1 इज द वॉल्यूम, और इसको अगर डाइल्यूट कर रहे हो आप तो वॉल्यूम हो रही है V2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M2. नेक्स्ट इज यू शुड नो द टर्म्स मिली इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं एंड मिली मोल्स क्या होते हैं. मिली इक्विवेलेंट्स, बिकॉज जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम असाइनमेंट्स में तो मिली इक्विवेलेंट्स कई जगह यूज होना है और मिली मोल्स भी कई जगह यूज होना है. मिली इक्विवेलेंट्स आर नथिंग बट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स. दीज आर मिली इक्विवेलेंट्स. और मिली इक्विवेलेंट्स को अगर आपने इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है तो जैसे हम मिलीलीटर्स को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडिंग बाय 1000. सिमिलरली अगर मिली इक्विवेलेंट्स आपको पता हो किसी सॉल्यूशन के, मान लीजिए मिली इक्विवेलेंट्स आर x, तो इसके इक्विवेलेंट्स बनाने हैं आपने तो दे विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1000. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मिली इक्विवेलेंट्स आपको पता है तो वहां से डायरेक्टली आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मेलिटी में मैंने जब डेफिनेशन दी थी तो नॉर्मेलिटी वाज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. उसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें मिली में ले लें, दैट विल आल्सो बी नॉर्मेलिटी. दैट मींस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स of solute divided by volume of the solution in milliliters. This will give you the normality. This will give you the normality. Similarly, you have to remember what are millimoles. So millimoles are nothing but they are volume, molarity into volume in milliliters of the solution. Millimoles are molarity into volume in milliliters. और मोलैरिटी अगर पता लगानी हो आपने, वैसे तो मैंने बताया था मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन, और मिलीमोल्स अगर पता हो आपको तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट per volume of the solution in milliliters. So you need not convert this volume into liters. अगर ऊपर भी मिली लेते हो नीचे भी milliliters लेते हो तो that will give you the molarity of the solution. We will do two numericals based on this molarity and normality before proceeding further.
2 important numericals based on molarity and normality आपको वो लिखने पड़ेंगे। और numericals है, first numerical is, it's very important numerical, that question is commercially available concentrated HCl. Commercially available concentrated HCl contains 38% HCl by mass. Contains 38% HCl by mass. What is the molarity of this solution? What is the molarity of this solution? Density is 1.19 grams per centimeter cube. Density is 1.19 grams per centimeter cube. And second part of the question is, what volume of concentrated HCl? What volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar HCl? I'll repeat the question. Commercially available concentrated HCl contains 38% HCl by mass. First part of the question is, what is the molarity of this solution? The density is 1.19 grams per centimeter cube. And second part is, what volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar HCl? तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है कि 38% HCl by mass, इसका मीनिंग होता है जब कहा जाता है कि सोल्यूट इज प्रेजेंट बाय मास, इसका मीनिंग है कि 38 ग्राम्स HCl is present in 100 gram of solution. तो जब कहा जाए कि 38% HCl by mass, this means 38 grams HCl is present in 100 grams of the solution. अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है क्या चीजें चाहिए होती है। न्यूमरेटर में आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता, हमें वेट ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन यहां से पता चल रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है इसको। यू आर गिवन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको रिलेशन पता है कि डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी, वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ, डेंसिटी को नीचे ले आओ, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना गिवन है, 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज आल्सो गिवन 1.19 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज डेंसिटी गिवन है 1.19 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर जो वॉल्यूम का आना है इस केस में, दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब्स। और अगर इसको डिवाइड करें, दिस इज 84.03 सेंटीमीटर क्यूब और 84.03 मिलीलीटर्स, एक ही बात है। तो अब आपको वॉल्यूम लग गई पता सॉल्यूशन की डेंसिटी की हेल्प से कि इतना मिलीलीटर सॉल्यूशन है, और वेट ऑफ द सोल्यूट भी पता है आपको 38 ग्राम्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। अब आप इजीली मोलैरिटी निकाल सकते हो, बिकॉज मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे HCl के, वेट 38 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, Cl का होता है 35.5 plus 1, that will be 36.5. These are the number of moles of the solute. और चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो नीचे हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर्स में पता है 84.03 into 1000. This will give you the molarity of the solution
Number of moles of solute 38 divided by molecular mass 36.5, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 84.03. इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, एंड दिस इज इक्वल टू 12.38 मोलर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. एक बार फिर देखते हैं. डेंसिटी गिवन है आपको सॉल्यूशन की, परसेंटेज दी है इसने सॉल्यूशन की, ऐसे कहा है 38% HCl है बाय मास. 38% HCl बाय मास मींस 38 ग्राम्स HCl प्रेजेंट होगा 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में. मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए होती है सॉल्यूशन की, लेकिन यहां पे मास गिवन है, तो आपने ये रिलेशन यूज करके डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करके वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है इसको. वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, और वो आ रही है 84.03 सेंटीमीटर क्यूब, 84.03 milliliters, or therefore molarity will be equal to number of moles of solute 38 divided by the molecular mass. number of moles है ये, volume of the solution milliliters में, इसको convert किया आपने liters में dividing by 1000, and the answer is 12.38 molarity molar. second part है question का, and second part is what volume of concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.10 molar HCl. तो आप इसमें यूज करोगे this relation M1V1 molarity equation is equal to M2V2. What volume is required? This is not given. ये आपको कैलकुलेट करना है, और कंसंट्रेटेड HCl की आपको अभी मोलैरिटी आपने निकाली है 12.38 इज M1, और इट हैज टू बी मेड, कितना बनाना है आपने 0.10 मोलर, और वॉल्यूम बनानी है इसकी 1 लीटर्स. लेट इट बी 1000 मिलीलीटर्स में कर देते हैं कन्वर्ट, क्योंकि यहां पे V2 1 लीटर को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट किया, तो V1 विल ऑल्सो बी इन मिलीलीटर्स. So this will be equal to V1 is equal to 0.10 into 1000 divided by 12.38. This will give you the answer. V1 will be in milliliters, and this is equal to 8.1 milliliters. So second part में M1 V1 is equal to M2 V2 यूज होना है. second molarity, second condition में वॉल्यूम दोनों गिवन है. V1 आपको कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी M1 आपने अभी पीछे निकाली है फर्स्ट पार्ट में. दिस विल गिव यू दी 8.1 मिलीलीटर्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमने अभी करना है वो है, लिखिए आप इसे, अ सैंपल ऑफ NaOH weighing 0.40 grams. A sample of NaOH weighing 0.40 grams is dissolved in water, and the solution is made to 50 centimeter cube in volumetric flask. What is the molarity of the resulting solution? You have to calculate the molarity. And second part of the question is, how many grams of NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of 0.15 molar NaOH solution. 0.15 molar NaOH solution. I'll repeat the question. A sample of NaOH weighing 0.40 gram is dissolved in water, and the solution is made to 50 centimeter cube in volumetric flask. What is the molarity of the resulting solution? How many grams of NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of 0.15 molar NaOH solution?
तो फर्स्ट पार्ट देखिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और एवरीथिंग इज गिवन. यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी. मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन. मोलैरिटी निकलेगी इसमें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलने हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट, और वेट गिवन है NaOH का इस क्वेश्चन में 0.40 ग्राम्स. तो 0.40 ग्राम्स, दिस इज वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास क्या होता है NaOH का, दैट इज 40 ग्राम्स. तो डिवाइडेड बाय 40 NaOH का मॉलिक्यूलर मास, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट. नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, और यहां पे मिलीलीटर्स में या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है 50. इसको कन्वर्ट करोगे आप लीटर्स में, डिवाइडेड बाय 1000. दिस विल गिव यू द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और ये आ रही है मोलैरिटी 0.2 मोलर. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. और सेकंड पार्ट जो है कि how many grams of NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of 0.15 molar NaOH solution. इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि कितने मोल्स होंगे अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन हो. जो बेसिक डेफिनेशन है ये 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग होता है कि 0.2 मोल्स NaOH प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर्स में. तो दिस बाय डेफिनेशन मींस 0.2 मोलर NaOH जब कहा जाए तो इसका मीनिंग होता है कि 0.2 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और इन 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट पता चल गया कि 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं NaOH के, 0.2 मोल्स. आपसे पूछा कितना गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में या 100 मिलीलीटर में. तो 100 मिलीलीटर और 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100. दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ रहे हैं 0.2 moles एंड मोल्स से पता चल गया आपको NaOH के. इसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. ग्राम्स में आप कन्वर्ट करोगे NaOH को, कैसे कन्वर्ट करना है, 0.2 इनटू द मॉलिक्यूलर मास दैट इज 40. दिस विल गिव यू the weight of the NaOH, that is equal to 8 grams will be the answer. एक बार फिर देखिए इसको, मोलैरिटी निकाल ली हमने और वो आ रही है 0.2 मोलर मोलैरिटी. और उसके बाद ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो उससे ये पता चल रहा है हमें कि 1000 मिलीलीटर अगर NaOH की सॉल्यूशन हो उसमें 0.2 मोल्स ऑफ NaOH विल बी प्रेजेंट. और उसने बोला है 100 मिलीलीटर अगर ली जाए ये वाली सॉल्यूशन तब उसमें कितने मोल्स होंगे, 100 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे. तो दैट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, 0.2 मोल्स. बट दिस एक्चुअली वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन. बट एक्चुअली अगर हम ऊपर क्वेश्चन देखें तो वहां पे आप केयरफुली देखिए, आपने ऐसे नहीं निकालना था. दिस वुड हैव बीन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है वहां पे. फर्स्ट पार्ट वाज 0.2 मोलर. दिस इज द जनरल मिस्टेक व्हिच वी कैन मेक, दैट इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल देंगे हम. लेकिन केयरफुली क्वेश्चन देखना है कि वहां पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन के केस में आपने निकालना था सेकंड पार्ट. तो देखिए, इट वुड हैव बीन इन दिस केस 0.15 मोलर NaOH मींस वही चीज है जैसे 0.2 मोलर NaOH मींस 1000 मिलीलीटर्स में 0.2 मोल्स. इस केस में 1000 मिलीलीटर्स में हाउ मेनी मोल्स शुड बी प्रेजेंट, 0.15 मोल्स ऑफ NaOH. और आपसे बोला जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 मिलीलीटर, this would have been 0.15 divided by 1000
into 100. So this will be equal to 0.015 moles. और कितने ग्राम्स होने चाहिए अगर मोल्स इतने आ रहे हैं? Grams will be 0.015 into molecular mass of NaOH and this will be equal to 0.6 grams. तो अगर तो बोला जाए 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NaOH, तब तो ऐसे होना है क्वेश्चन कि 1000 मिलीलीटर में 0.2 मोल्स होते हैं. 100 मिलीलीटर में 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, दिस विल बी 0.2 मोल्स. मोल्स निकाल लेंगे और उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे by multiplying it with molecular mass of the NaOH. लेकिन question was 0.15 molar NaOH has to be taken और 0.15 molar NaOH means 1000 milliliters में 0.15 moles, 100 milliliters में 0.15 divided by 1000 into 100 और ये moles आ गए. Therefore weight of NaOH required will be equal to 0.015 into 40 equal to 0.6 grams. So these were important numericals based on normality and molarity.